In the bulletin with the focus on the top story of this hour. Delhi has woken up, in fact, the northern part of the nation has woken up to dense fog enveloping various parts of the northern India, bringing visibility and temperature down, impacting the train and the flight operations in the northern parts. As per the past 24 hours, the data of the IMD, the Delhi has witnessed a maximum temperature of 16 degrees Celsius, where a departure of 3 degrees below normal and minimum of 7.6 degrees Celsius is witnessed. Delhi is also expected to witness fog till January 8th with light rain accompanying on January 6th. The temperature in Delhi on Friday, as of Friday, was 9.6 degrees Celsius, making it the 5th cold day in a row for the national capital. Meanwhile, train departing from and arriving in Delhi are also running late, while some routes are being operated with changed timings. Due to dense fog, 24 trains are running late, ranging from 90 minutes to about 4.5 hours late. All right, viewers, let me also get a sense of how exactly the situation is looking like of complete dense fog from the ground this morning. Fifth consecutive day where cold day conditions has been prevailing. The IMD has also announced that for a fifth day, cold day conditions prevail. And right now also, let me get a word from my colleagues who are there on the ground, Arzu Seth and also Mahinder Mahi joining me from Delhi and Noida respectively. Arzu, good morning. As in fact, the morning looks like to you it's icy cold weather, but what's even worrying is the nature of the fog that has intensified in the past few days. And how does it even look like as the cold day conditions have prevailed for the 5 days in a row? Well, yes, rightly mentioned, Simran. This is the fifth consecutive day when there has been a cold wave that is right now prevailing in national capital. Also, when we talk about the fog condition, there has been a dense fog that is being seen today in the national capital, and this is the first day of the new year when such a dense fog is being seen here. I would like to show the visuals also. As you can see, it is very tough to even see building nearby areas, and the trees are also covered with the dense layer of fog, and the visibility has dropped to 0 meters. In the morning, it was around 100 meters at the Parliament. At Safdarjung, it was around 300 meters, but now it has also gone down to 0 meters. And as you can see, these are the visuals from the central Delhi, where you can clearly see a thick layer of smog, and not only at the central Delhi, but at the isolated pockets of the natural capital, there is an extreme, dense fog that is right now prevailing. People going in the morning for their routine work are being suffering due to this dense fog. And also, when we talk about the train has been impacted, around 24 trains that are running delay. Sorry, and also there are 2 trains that have been rescheduled. Not only this, but a train are running delay ranging between 90 minutes to 4 hours, which is also increasing due to the dense fog in the northern India also, and the Delhi NCR region. So this is the condition. People arriving late, causing a lot of problem for their emergency work. But as you can see, the IMD prediction, there has been such relief coming in the coming days, because there will be a drop in the minimum temperature also in the coming days. Yes, Simran. All right, Arzu, in fact, as we can see, the situation is currently very worrying, and as we take the visuals from the ground, anything hardly can be seen, with the visibility dropping even further, and also the cold day conditions prevailing across the parts of the North India. Well, now joining me live on the broadcast is also my colleague Mahinder Mahi. Mahinder, very good morning. How is exactly this morning looking in Noida? Is Noida, in fact, in some sense, doing a little better as far as visibility scope is concerned, as trains and flights continue to get cancelled and delays are inevitable at this point of time as cold day conditions prevail? What is the situation there from where you're reporting? बिल्कुल सुमन, देखिए साल की शुरुआत है और पहला ये कोहरा है अगर देखा जाए दिल्ली एनसीआर में, क्योंकि सुबह के तड़के ही लगातार नोएडा और
ग्रेटर नोएडा और आसपास के तमाम इलाकों में जब लोग अपने घर से बाहर निकले तो उन्होंने देखा घना कोहरा घर के बाहर है। और ऐसे में खासकर नोएडा एक्सप्रेसवे, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे और तमाम ऐसे जो देहात के एरिया है वहां सबसे ज्यादा कोहरा है। सुबह की मैं आपको तस्वीर एक बार दिखाऊं, देखिए किस तरीके से आपको सड़कों पर अभी भी कोहरा नजर आएगा। और ऐसे में जो वाहनों की रफ्तार है वो बिल्कुल थम चुकी है, क्योंकि लगातार जो है आईएमडी ने भी कहा था कि देखिए आने वाले 3 जनवरी के आसपास जो है दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की तो ठंड पड़ेगी, उसके साथ साथ जो कोहरा है वो भी दिखाई देगा। तो ऐसे में सुबह से ही नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद, गुड़गांव आसपास के तमाम इलाकों में घना कोहरा दिखाई देगा। और ऐसे में देखिए सामने जो इमारत है वो बिल्कुल गायब हो चुकी है। सूर्य देवता के दर्शन लोग नहीं कर पाएंगे आज, क्योंकि आज पूरे दिन इसी तरह का मौसम जो है बना रहेगा। तो ऐसे में सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो कोशिश करें पूरे कपड़े पहन के बाहर निकले, सर पे टोपी लगाए, दस्ताने पहने, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है, कोहरा बहुत ज्यादा है। ऐसे में नोएडा प्रशासन के द्वारा तमाम स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है, यानी कि नर्सरी से लेकर कक्षा 8वीं तक के सभी स्कूलों को अगले आदेश तक बंद करने के निर्देश दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ आईएमडी का भी कहना है कि आने वाले समय में नोएडा एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में और ज्यादा कड़ाके की ठंड पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं लोगों की मुश्किलें बढ़ती जरूर नजर आएगी। दूसरी तरफ उस कोहरे में हल्का जो है धुंध भी है, यानी कि जो पॉल्यूशन है वो भी बहुत ज्यादा। अगर आज की बात करें तो नोएडा के तमाम इलाकों में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 250 के पार पहुंच गया, यानी कि कोहरा, ठंड और ये स्मोक की चादर आम जनता को बेहद परेशान कर रही है। क्योंकि सबसे ज्यादा कोहरा एक्सप्रेसवे की तरफ है, तो ट्रैफिक जो विभाग है उन्होंने भी एडवाइजरी जारी कर दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो वाहनों की रफ्तार होगी वो पहले के मुकाबले बहुत कम होगी, यानी कि जो हल्के वाहन होते हैं वो 60-70 प्रति घंटा किलोमीटर चलेंगे, और जो भारी वाहन होते हैं यानी कि डग्गा मार होती है, बड़े बसें होते हैं, वो 40 से 50 की रफ्तार में चलेंगी। तो ऐसे में भी आपको भी ध्यान रखना है कि अगर आप सड़कों पर निकल रहे हैं सुबह के समय, अगर कहीं घना कोहरा है तो वहां अपनी गाड़ी रोक ले, जब घना कोहरा साफ हो जाए जब गाड़ी चलाए। क्योंकि कल हमने देखा सुबह ठंड की शीतलहर हवा चल रही थी, जिसके कारण जो कोहरा था वो छट चुका था, मगर जो हवा थी उसने बहुत ज्यादा लोगों को परेशान कर दिया था। ऐसे में आज की बात करें तो बिल्कुल मौसम बदला हुआ है। सुबह 7 डिग्री टेम्परेचर जो दर्ज किया गया था, अब जाके 8 डिग्री हुआ है, और जो शीतलहर हवा के साथ साथ जो घना कोहरा है वो लोगों को परेशान कर रहा है। दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग ने भी एडवाइजरी जारी किया है कि छोटे बच्चों को इस समय बाहर ना निकलने दे। खासतौर पे जब सुबह शाम बच्चे खेलने के लिए जाते हैं तो उनको रोके, अगर वो बाहर खेलते हैं तो बीमार पड़ सकते हैं। और ऐसे में सरकारी अस्पतालों में मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ने लगी है। खासतौर पर छोटे बच्चे, घर में जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको खांसी की समस्या आ रही है, जुकाम की समस्या आ रही है, बुखार की चपेट में आ रहे हैं। तो ये सावधानियां आपको जरूर रखनी चाहिए। दूसरी तरफ प्रशासन की क्या तैयारी है इस कड़ाके की ठंड से आम जनता को बचाने के लिए, या ऐसे वो लोग जो बेसहारा होते हैं जो दूसरे राज्यों से नोएडा में आते हैं, तो उनके लिए बता दें कि रेन बसेरों की व्यवस्था की गई है, अलाव की व्यवस्था की गई है। और तमाम जो पब्लिक एरिया होते हैं, यानी कि बस स्टैंड हो गया, जिला अस्पताल हो गया, स्टेडियम हो गया, और जो तमाम ऐसे एरिया होते हैं वहां रेन बसेरा बनाए गए हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति इस कड़ाके की ठंड में सड़कों पे अपनी रात ना गुजारे। तो ऐसे में नोएडा में 12 जगहों पर रेन बसेरा बनाया गया है। और दूसरी तरफ नोएडा पुलिस ने भी पहल की है कि कोई भी अनजान व्यक्ति या कोई भी बाहरी व्यक्ति अगर उसको रैन बसेरा तक जाना है, उसका खुद का कोई साधन नहीं है, या उसको रात में कोई टैक्सी, ऑटो रिक्शा नहीं मिलता, तो डायल 112 तो वो फोन कर सकता है, और जो डायल 112 की टीम आएगी उसको नजदीकी रैन बसेरों तक छोड़ेगी। फिलहाल जो ठंड है वो और ज्यादा बढ़ेगी। आईएमडी ने भी कहा था कि देखिए 3 जनवरी के बाद जो मौसम है उसमें काफी बदलाव देखा जाएगा, कोहरा दिखेगा, शीतलहर हवा दिखेगी, गलन वाली ठंड दिखेगी, तो उसका असर देखने को मिल रहा है। बताया भी जा रहा है कि आने वाले 5 से 6 जनवरी में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसके कारण बारिश होने की भी संभावना है। अगर बारिश होती है तो टेम्परेचर और ज्यादा डाउन हो जाएगा। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं किस तरीके से पहाड़ी राज्यों में लगातार बर्फबारी हो रही है,